मैं अंजना. I am the founder of Inora, a very small little place from where I work. And this is definitely because of Virilji and Shri that I'm sitting right in front of you and telling you about myself. The drive of helping others achieve harmony. This thing came to me after I battled my way through and healed my blood cancer. At Honora, I'm a wellness coach, a teacher, a mentor, and a communication expert who firmly believes that human consciousness can be really expanded. But I passionately dedicated myself towards helping people tap their own dormant powers after I was initiated into Divya Shakti. And needless to say that Virilji has majorly contributed in my growth. And here I am, I proudly say that I'm a Divya Shaktiyan. And this process has truly empowered me to reach where I am. It's been an association spreading over 2 wonderful years today. As we go along this event, I'll keep sharing my growth with my guru, Shri Viral Manikji. Today's event, moving from darkness to light. Very simply put, as the word guru suggests, gu means darkness, ru means dispeller. The dispeller, dispelling darkness. But how to dispel this darkness? Actually, you cannot kick the darkness out of a place because darkness is not an existence by itself. Darkness को हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि darkness is absence of light. Light की वैल्यू हम इसलिए करते हैं because it brings us clarity. If you were an owl, darkness would bring clarity to you. Light wouldn't have been. It would be more disturbing and blinding. And this is true for many people who are actually still in the state of darkness. Suppose you are in a dark room and you're not able to see anything. Suddenly, you start feeling alone. Think about that scenario. And if the lights go on, you feel the world is with you again. Everything is the same, just because you have that clarity, because you can see clearly. The world changes and your experience changes. And this is what the Guru's work is. The Guru's work is to make you see everything the way it is. If you see it clearly, everything will change. And this is the mantra I got after I was initiated into Divya Shakti and came in close contact with Virilji. हम अपनी साइकोलॉजिकल सिचुएशंस को, अपनी फिजियोलॉजिकल सिचुएशंस को, सोशल सिचुएशंस को चेंज कर सकते हैं. बट एज विरल जी सेज, जो एग्जिस्ट करता है उसको हम चेंज नहीं कर सकते. उसको हम अगर जिस तरीके से वो है उसे महसूस करें और उसे वैसे ही देखें जैसा वो है, देन कुछ भी हमारी जिंदगी में चेंज नहीं होगा. कोई फर्क नहीं पड़ता आप अपने जीवन में किस चरण में हैं, आप अपने जीवन के किस पहलू को संबोधित कर रहे हैं. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए. आपको उसे वैसे ही देखना है जैसे वह है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है. पर हम सब चीजों को बदल देते हैं अपनी परसेप्शन से, अपने बिलीफ से, अपने वैल्यूज से. जो कुछ भी हो, चाहे वो एक साधारण सी फिजिकल चीज हो या
जीवन में आने वाले मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस, आप उनसे समझदारी से तभी निपट सकते हैं या रह सकते हैं जब आपके पास उनको देखने की क्षमता हो, हर चीज को जैसा है वैसा ही देखने की स्पष्टता। और इस स्पष्टता यानी क्लैरिटी को अचीव करने के लिए हमें ऐसे गुरु की जरूरत होती है जो हमारे अंदर के गुरु को जागृत कर सके। सो डियर ऑल, let us know from M. Rajshekhar how has his guru impacted his life. Mr. Shekhar is a money coach who resides in Hyderabad. May I request Mr. Rajshekhar to come online and share his experiences. I am already online since many years with Viral sir. I would request you to share your experiences. Thank you very much for the wonderful opportunity you had given. Before I narrate about my situation, I'll tell you a small incident of a 5 years old kid lost in an exhibition with full of crowded, and he was crying and crying and crying. He doesn't know where to go. That time, a lady comes and holds the hand and says, "Don't worry, I am there." So this child holds her hand with both hands. And as they are walking together, that lady introduces to a gentleman, and that gentleman also extends his finger to this child to hold his finger. This child reluctantly denies and says, "You hold my hand." The elderly person asks, "Why you are asking?" "Because if I hold your hand, there is a possibility that I may slip your hand. I may not hold your hand so strongly. If you hold my hand, I am sure that you will not leave my hand." So I was the child, the lady was Shri, and the gentleman was Viral sir. In the crowd of Dunyadari, bolte hai na? In the crowd of Dunyadari, I was lost. I was not able to understand where to go and what to do, what not to do. It is 2015 December, November, in fact, November 2nd, second half, in fact, where I met first time Shri, and she took me in her care, and she was moving along. After that, 1.5 years, I was fortunate enough to meet Viral sir, and the whole game changed. The whole game changed. Me, who was struggling to survive at the time of 2015, where I was struggling to survive, and even my neighbor was hardly knowing me. Today, across the world, all the Telugu speaking people know me by the name Mani Guru, and that all credit goes to these two gurus. और क्या कहना, कहते जाएंगे तो कितने भी दिन काफ़ी नहीं है. So I think I had said more than what I'm supposed to say. Thank you so much, Mr. Shekhar. In fact, मेरी story भी कुछ ऐसे ही शुरू हुई थी. It was very incidentally that I met Shri in one of the training sessions when I was actually very traumatized. And it so happened that when Shri held my hand, there was another hand which came from behind, and the hand just came on my head, and it's still there as his blessings It today. will be there always. It will be there always. Yeah. It will be there always. So, anything else you would like to share? No, if at all anything I'll say, I may beep out. Thank you so much. इतनी Thank you. कृपा, इतनी कृपा, इतनी कृपा है. न जाने किस जन्म का मैंने पुण्य किया है कि ये दोनों मेरे जिंदगी में आए, या मुझे उनकी जिंदगी में लिए, पता नहीं. आई डोंट नो टू थिंक अबाउट दैट आल्सो, बट आई एम कनेक्टेड, and ever since I am connected, the life is no more the same. No more the same. And day to day basis, I can count how I'm growing, how I'm growing day to day basis. Even today, I have a wonderful news on the Guru Purnima day.
I bought my new car only with the blessings of these two gurus. Shat Shat Pranam, Koti Koti Pranam. कितने भी प्रणाम बोलो इन तो उतरेगा नहीं. I feel short of words to express gratitude to these gurus, and on this occasion of Guru Purnima, I am fortunate enough. Thank you, Arjuna ji, for giving me a wonderful opportunity to express my gratitude on this platform. Thank you, thank you, thank you, thank you, Shri. Thank you, Viral sir. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Shekhar, for sharing your experience. I have all my gratitude to you also to actually letting us know how a guru in your life has expanded your vision and expanded your life. मेरे साथ भी कुछ एक छोटा सा इवेंट ऐसा ही, छोटा नहीं बोलूंगी, काफी बड़ा था. जब मैं दिव्य शक्ति में आई थी तब उस समय फिजिकल बॉडी से काफी कुछ जूझ रही थी, और आज तक भी ऐसा होता है कि जब भी मुझे मैनिफेस्ट करना होता है अपनी फिजिकल बॉडी में तो मैं बड़ा इजीली कर लेती हूँ. I remember Viralji telling me that you are not your physical body. You perceive your suffering in your physical body. और ये बहुत इजीली मैंने समझा, और जब मैंने ये समझा तब मुझे ये भी समझ में आया कि हम एक्चुअली अपनी फिजिकल बॉडी होते नहीं हैं. He said very clearly to me once that if you see existence the way it is, not the way you think it is, everything about you and your relationship with the existence changes. And to tell you all, sure enough, today my physical body stays in my control. मैं अब इतनी बीमार नहीं पड़ती जैसे हमेशा पड़ती थी, और अगर पड़ती भी हूँ तो बहुत जल्दी समझ आ जाता है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है. So now let's hear it from Ishan Alag as to what Divyak Shakti means to him. Ishan is an audio engineer and he's from Gurgaon. Anjana, there's just a little problem. My Wi-Fi is so weak that the video is actually. Can I start? Can you give me an audio, Ishan, if you're yes. I'd like to. Hello. Can I start? Yes, please. Okay, I'll share a recent incident, and I've been exploring this since almost a year now. It obviously all started with Divya Shakti about 1.5 years back, or probably a little more than that. So Viralji guided me with the process, and things unfolded beautifully. One day, while ruminating my intuition, which is Divya Shakti, took me to a web page of a sage from South India. His name was Swami Ramalingam. I had never heard about him before, and it was just, I don't know how I reached this page. And he had written about more than 5,000 poems. So I started exploring some of those. And then I came across a chant that he recommended to everybody. And it was Arut Perum Jyoti. And when I combined Divya Shakti practice with this mantra, I was able to experience light not just within my own brain, but also outside in the physical reality in front of my eyes. Something like white sparks, they fade in and fade out, but all within a moment. So you can't really go and be like, that's the one, because by that time, they're going to be like 5-6 of them in and out. So this was the experience with light, and these were, and now let me tell you one thing, that these chants I had been doing before as well. Maybe not Arut Perum Jyoti, Shri Brizi, or some other chant, but whatever practice I was doing before actually started to work after Divya Shakti. Before that, I was doing it all by myself, just trying to get somewhere. But with Viralji's intervention, the path was much more clear, and it's been an interesting ride till now. So
there have been times when I've been scared of these energies, because this is not something that you see on a day-to-day basis. But that's when the guru steps in and guides you. So this is my experience with Divya Shakti, just a little small part of it, and I'm forever grateful to Viral ji for this support. Thank you. Thank you for sharing your experience, Ishan. Now I call upon Mr. Rishikesh Deshpande, who's going to share his experience. He's an animator and a budding trader. Can we have him, Mr. Deshpande? Namaste, Namaste to all. Madam Ji. Hi Shri, how are you? Namaste Guruji. Hi Anjana. Hello. I would like to share one experience which is quite a new one for me. I have done, you have introduced me, so I will not talk about that. But I have done Divya Shakti around more than a year ago, and I did Parashakti a few months ago. I have been practicing it since I have done Divya Shakti. When I did Divya Shakti, I was in relationship turmoil. I was in financial turmoil. There was a lot of problems happening. But the way the process was guided by Guruji, I did it. The thing was that when I started doing that, I had to make my mind ready, my body ready to start doing all the processes. Every time I would sit, either I will hear something which will disturb me, or I will have some itching in my body, or something or the other would take me out of what I am trying to do. So few days ago, I've been doing this for last 1 year and it is amazing. But few days ago I was very busy, so I couldn't do Parashakti process. So basically half a day went past and I actually started feeling a lot of heaviness in my third eye, Nasikagraha. And I thought it has become a everyday phenomena. So I just thought something must be happening. I did not focus on it. But next day also happened the same thing. The intensity was slightly higher. And the third day, what happened was that intensity has gone so heavy that I realized it is a guiding force which is trying to guide me something. So the moment I felt that, I sat and did the process the way Guruji have taught us. And in that moment, I realized that from the day I have learned Divya Shakti and Parashakti process, I had to make myself ready physically and mentally to sit and be there for the given time. For the first time, it happened that I was called to sit and do it. It is like this Divya Shakti and Parashakti is actually taking over me, and that is something which is I would say the profound is everyday normal now, and I'm really very grateful for all the things which Guruji and Shri has taught us. I just love your smile, Shri. Just keep smiling. It is just wonderful that all just keeping focus on what they have taught and doing it consistently. It is you're bound to reach there. It's every day is a profound one, and it has become a normal thing for me. And I'm pretty sure those who have been doing it for last how many time I don't know, but those who are doing it consistently, it is happening for them also. And I thank all of you. You have participated in this. It is just wonderful, and I hope that this just increases day by day. And shat pranam to Guruji. Shri, keep smiling. This is just amazing.
Thank you very much, Anjana. Thank you so much, Thank you. Deshpande. And here's a video testimony which I'm going to share with all of you, all the way from California, from Sonal Thakur. Just give me a moment. A very good afternoon from the sunny California. I so wish I could be a part of this session, but my apologies because of the travel distance and because of my travel, I cannot attend it. But a very happy Guru Purnima Viralji. Thank you so much for being my mentor. From the time I have met him, from the time I have started talking to him, I have started seeing life in a very, very different way. I never thought that we could expand so beautifully. I never knew that that we as human beings are so empowered. I never knew that we can actually create our own reality. I never knew that we can actually manifest and let the life unfold in the way that we would like to be. I never knew that the internal journey is actually so beautiful and that light that is within us is so approachable. Well, it is a lot of self, but he made it unfold in such a beautiful way that now every day I get up, thinking, just with an excitement to see what unravels in life, because I think life is so mystical. Everything that happens in life is so synchronized from the time that you start aligning yourself. And that alignment is what he has brought to my life. I feel so peaceful. I feel so aligned in my mind, body, and soul. And after doing Divya Shakti and after doing Divya Shakti process, I truly feel that, I'm empowered to deal with the situations that come my way. Life is all about, we have our highs and we have our lows. But if you know how to deal with these, and if you know how to respond to be aware of these situations, and rather than reacting, if you respond from the place of being aware, everything changes. He has taught me so beautifully that everything that happens in your life, you are the creator. You are the person who's actually bringing in that story to that situation. So we can change the narrative. We can change the story. We can, and the only thing that we on a daily basis, every day, is raise our vibrations, and everything falls into place. That also, has been a part of my learning through Viralji. I think this video cannot do justice to what all I have learned from him, but this is just like a minute, tiny narration of what I could, bring in this small video. So thank you so much. A very happy Guru Purnima, Viralji, and I cannot thank you enough for being a part of my life. Thank you. Thank you so much, Sonal, for sharing your experiences. From here, I kind of hand over to Vidya. I don't think so. I need to give any introduction about Shri because all of us know what Shri is. But for those who are new to Divya Shakti or those who are new to Pure Energy Academy, नमस्ते मैडम जी, उर्दू में समझाओ। हुसैन जी, आप अपने आप को प्लीज म्यूट कर लें। Shri is a co-founder of Pure Energy Academy along with Shri Viralji. As we all know, Shri is a counselor, a psychic psychologist, a gem therapist, a wealth expert, astro vastu consultant, and definitely a very mystic healer. And I think the list is endless. So from here, I think I should let Shri take it up about herself from here. Welcome, Shri. Please enlighten us. Thank you very much. Says Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Tasmai Shri Gurave Namah. Guru is actually someone who can just be there for you. And
I had always heard the story of Pied Piper. तो मुझे लगता था ये सिर्फ एक स्टोरी है. But it all changed when I met the mystic, the magic. He will literally, he plays some music, he does some magic, and you don't know how your life starts transforming from the day you meet him. कभी कभी उनको कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ती. He will just listen to you and things will start working for you, start changing for you. How else would a person who is, always been in film industry and stuff like that suddenly land up into a spiritual world? And I was like, अब मुझे यही करना है. बहुत बार भागने की कोशिश करी, but this guru is somebody who will bring you back all the time. I know how, when we stop sometimes doing Divya Shakti, वो आपको एक ही प्रश्न पूछेंगे, बंद क्यों किया, वापस शुरू करो. And then you're like, okay, करना पड़ेगा. He's been guiding me, he's been helping me, and I mean, I don't know, words थोड़े से कम है. भगवान हमको ना 3 लोग हमेशा दे देते हैं, मदर, फादर एंड गुरु. हमको ना 3 एंजल्स हमेशा हमारे आसपास रहती हैं. So I am lucky to find all the angels in my life together. Thank you so much. That's all. Thank you so much, Shri. Small little words, but they said a lot. And we know exactly how you've been mentored. It comes out very clear. Shri Viral Manik ji, what do I say about him? मेरे साथ बहुत इंस्टेंसेस हुए हैं जब सिर्फ मैंने दिमाग में सोचा है कि मुझे विरल जी से हेल्प चाहिए और वो हेल्प अपने आप आ जाती है. जब कभी भी मैं अपने केसेस के साथ स्टक होती हूँ एंड आई आस्क फॉर हिज हेल्प, ही नेवर सेज आई एम गोइंग टू डू दिस. ही ऑलवेज टेल मी, आप करो, मैं हूँ, आप कर लोगी. एंड नीडलेस टू से हमेशा हमेशा मेरे काम हुए. Viral ji, my coach, my mentor, my guru, the light himself. In my life, he is kind of a tattva, if you understand, an element, a quality inside me. I will not say that he is limited to any body or any form. He stays as light, which has been expanded in me by him himself. It's something like जब आप एक स्ट्रीट पे वॉक कर रहे होते हो, आप किसी पिट में गिरते हो या आप पेवमेंट पे चल रहे होते हो या सड़क पे चल रहे होते हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सनलाइट, नॉट अपॉन व्हाट यू आर थिंकिंग. इट्स समथिंग लाइक दैट. ही इज द सनलाइट which comes to you, but it's absolutely up to you where you utilize this sunlight, whether you welcome this sun. This is your choice. For all those who are not aware of who Viral ji is, Viral ji is the founder of Pure Energy Academy. He is the mystic guru. He's an author. He's a healer. He's a psychotherapist. He's a philosopher. He's a visionary. He's a businessman. And he is much beyond than our, especially my imagination. Today's event, moving from darkness to light, is something which would be very difficult for me to explain. So here I welcome the Guru himself to make us all experience the light within us. Viral ji, may I have you here online with us? Pranam Viral ji. आप सभी का स्वागत है. मेरे लिए
जो भी कुछ बोला गया है वो मैं नहीं हूं, और मैं आपके जीवन के परिवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं हूं। आप अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। श्री ने कहा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीधी सी बात है कि गुरु कौन है और गुरु कैसा होना चाहिए। आजकल मन की भ्रांतियों से बहुत सारी व्याख्याएं हमें सुनने मिलती है। यहाँ इस सूत्र में बहुत स्पष्टता से बताया गया है कि जो परब्रह्म को अपने अंदर उतार ले, अपने शरीर में एम्बॉडीमेंट में जिए, द वन हु लिव्स इन द एम्बॉडीमेंट ऑफ द परब्रह्म। अब परब्रह्म कौन है? तो यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश की भी बात की है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये पूरे जगत की प्रक्रिया है, क्रिएशन, सस्टेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन। इस तीनों चीज के अंदर जो मास्टर है, जिसके द्वारा ये घटित होती है, ये प्रक्रिया है, उसे परब्रह्म कह लो, उसे लाइट कह लो, उसे गॉड कह लो, उसे कोई भी कहे। तो जो अल्टीमेट लाइट को रिप्रेजेंट करता है, अपने शरीर में जागृत अवस्था में जीता है। अगर वो जागता है या सोता है या स्वप्न देखता है, फिर भी वो जागृत है, अवेयर है। हम जब सो जाते हैं या फिर स्वप्न में होते हैं, तब जागृत नहीं होते। हम तभी जागृत होते हैं जब हम जागते हैं। ये कैसे घटित होता है? ये एक प्रक्रिया है। लेकिन मेरे साथ 1995 के आसपास मेरा हाथ पकड़ के मुझे ढूंढा मेरे गुरु ने। बचपन से काफी एनलाइटन मास्टरों के बीच में रहा, क्योंकि मेरे पिताजी और माताजी की वजह से। सच कहे तो मैंने कुछ नहीं किया, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। और ये बात होती है कि गुरु आपका हाथ पकड़ता है, आपको कुछ करना नहीं होता, आपको सिर्फ तैयार रहना होता है। वो जब देखता है कि आपके अंदर की, आपका चित्त जैसे जैसे शुद्ध होते जाता है, आप जैसे तैयार होते हो, गुरु आपको ढूंढ ही लेता है। और जब गुरु की बात करते हैं, मेरे गुरु कौन थे, एनलाइटन मास्टर्स कितने हैं, कौन सा एनलाइटन मास्टर्स, कौन सा भगवान अच्छा है, मेरा भगवान कौन सा है, मेरा भगवान सही है कि गलत है, आपका भगवान, ऐसा कोई डिस्टिंक्शन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होता नहीं है। मेरे लिए जितने भी एनलाइटन मास्टर है, वो एक ही है, और वो एक ही शक्ति है। वो अलग अलग व्यक्ति के द्वारा प्रकट हुई है, तो उसमें कोई तफावत नहीं देखता। तो आपके जो भी गुरु हो, दो ही चीज महत्व की है। क्या आप अपना चित्त इतना शुद्ध रखते हो कि गुरु आपको ढूंढ ले?
और आपका गुरु एनलाइटन मास्टर है, तो जो भी है, जहां भी है, जैसे भी आप जिसको भी मानते हो, वो एक की तरफ आप यात्रा कर रहे हो, और वो गुरु की जिम्मेदारी होती है कि आपको उस अनुभव की तरफ लेके जाए। अब हमने यहां मूविंग फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट कहा है, तो डार्कनेस हमें ये समझनी पड़ेगी कि हम इस जगत में जो जीते हैं वो द्विधा में जीते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट में जीते हैं, वो कॉन्ट्रास्ट में जीते हैं। हर चीज के अंदर हमें कॉन्ट्रास्ट होना जरूरी है, ये व्यवस्था है, इसको हम बदल नहीं सकते। जैसे मैं हर हमेशा कहता हूं कि रात्रि या दिन ये कॉन्ट्रास्ट है, तो हमें कैसे पता चलता है कि रात हुई? हम कहते हैं कि अंधेरा हुआ इसलिए पता चला, लेकिन अंधेरा हुआ ये कैसे पता चला? तभी हमें पता चलता है, अंधेरा हुआ तभी हमें पता चलता है अगर हमें उजाला मालूम, और उजाला हुआ तभी हमें पता चलता है, लाइट हुई तभी पता चलता है जब हम अंधेरा महसूस कर लेते हैं। So when you experience darkness, so what is the darkness that we are talking about? हम किस डार्कनेस की संदर्भ में बात करते हैं? तो पहले डार्कनेस को समझ ले कि क्यों डार्कनेस आती है। तो कॉन्ट्रास्ट एक्सपीरियंस करने के लिए अगर हमें प्रेम की अनुभूति करनी है तो हमें हेट्रेड को समझना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा, जीना पड़ेगा, तभी ही आप प्रेम को महसूस कर पाए। खाने का स्वाद क्या है अगर ये पता करना है तो आपको जब भूखे रहेंगे, एक दिन उपवास करेंगे या 3 दिन अगर हमें कोई खाना नहीं मिलता, तब हमें उस खाने का जो रोज मिलता है उसका पता चलता है। तो कॉन्ट्रास्ट में ही अनुभव आते हैं, और कॉन्ट्रास्ट से ही हम निर्णय ले पाते हैं और जीवन आगे बढ़ता है। तो इसी तरह से हम अपने जीवन में कोई ना कोई कॉन्ट्रास्ट, कोई ना कोई डार्क साइड लेके आए हैं जिससे हमें लाइट में लाना है, ताकि ये पूरी कॉन्शियसनेस एक्सपांड हो सके, आगे बढ़ सके और हम उसे अनुभव कर सके। हमारी अभिव्यक्ति भी यहीं से आती है। अब इस प्रक्रिया में आज के संदर्भ में जो डार्कनेस की मैं बात करने जा रहा हूं वो ऐसी है कुछ। हम ये मान लेते हैं कि भगवान सब कुछ करता है। जैसे ही हम ये मानते हैं तो उसमें 2 रास्ते आते हैं, या तो फिर हर बात भगवान पे छोड़ दो, या अब कोई भी अपने बातों को क्लेम ना करे कि मैंने किया। ऐसा नहीं होता है, ना भगवान कुछ करता है, आपको ही सब कुछ करना है। और आप ही, आत्मा शब्द निकला है परमात्मा से, तो आप भी भगवान के अंश ही हो। तो भगवान को मानना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कोई एक सुपर ह्यूमन है और वो ऐसे बैठ के सब कुछ संचालित कर रहा है, और वो ये देख रहा है कि इस आदमी को मैं क्या करूं, उस आदमी से मैं क्या लूं, इस आदमी को क्या दूं। ऐसा कभी नहीं होता। हमारी ये मानसिकता है, हमारे मन के विचार के आधार पे हम ये सोचते हैं कि हमारा भगवान ऐसा होगा। भगवान सुपर ह्यूमन नहीं है। दूसरी बात है कि कोई एक शक्ति ये सब कुछ चलाती है, नहीं, ये ऑटो व्यवस्था है। ये दूसरी हमारी अंधकारमय मान्यता है जो हमें अपने आप में एम्पावर होने के लिए रोकती है। अपने आप में प्रकाश को अनुभव करने के लिए ये हमारे ऑब्स्टेकल्स हैं, ये हमारे अंधेरे हैं। दूसरा, हम ये मानते हैं कि आपके दुख के लिए और कोई जिम्मेदार है।
मैं तो ये कहता हूं कि दुख और सुख ये सिर्फ हमारी मान्यताएं हैं। जैसे कि एक चीज में एक आदमी को दुख होता है। अब जैसे अभी कुछ समय पहले एक त्योहार गया जहां पे बलि चढ़ाई जाती है जीवों की, तो उसके लिए ये खुशी का माहौल था। दूसरों के लिए ये दुख का माहौल हो सकता है, दूसरों के मामले में ये पीड़ाजनक हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। कोई एक आपके दुख और सुख का कारण आप ही हो, और सुख और दुख सिर्फ कल्पना में होते हैं और कल्पना में आते हैं और उसे कल्पना से ही मिटाए जा सकते हैं। अब ये बात हम बुद्धि से समझने की कोशिश करेंगे तो शायद आप मेरे से काफी विवाद कर सकते हो। आपकी प्रकृति 3 प्रकार की हो सकती है। आप डिसिप्लिन में जी सकते हो और डिसिप्लिन से अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, या आप भावनात्मक हो, ज्यादातर हमारे धर्म भावनाओं को ज्यादा बढ़ावा देते हैं, बुद्धियों को कम, या फिर आप तर्क से अपने आप को समझने का प्रयास कर सकते हो। ये 3 माध्यम से आप अपने आप को पहचानते हो, जानते हो। तो जिस माध्यम आपको सही लगता है उसी को पकड़ के उसकी पूरी ऊंचाई तक जाइए, आपको सत्य मिल जाए, आपको लाइट अनुभव हो जाए। अब कब होगी? जब गुरु कृपा होगी। कृपा यानी ऐसा शब्द है कि कृपा तो होती ही है, ऐसा कोई समय नहीं है कि दिव्य कृपा हमारे पर ना बरसती हो। भगवान की कृपा, गुरु की कृपा, ऐसा कोई समय ही नहीं है कि जहां मां आपको प्यार ना करती हो। इसी तरह कृपा बरसती है। हम कितने उसके लिए तैयार है, हमारा पात्र कैसा है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि हम कितनी कृपा समेट सकते हैं। जैसे कि बारिश गिरती है तो आप के पास बर्तन कितना है उतना ही आप पानी भर सकें। इस तरह से कृपा का भी वैसा ही। हम ये भी मानते हैं कि सब कुछ निश्चित है और पूर्व नियोजित तरीके से चल रहा है, और जो भी कुछ हो रहा है मेरे कर्मों का फल है। ये एक सबसे बड़ा अंधकार है। तो हमारा कोई रोल ही नहीं बचता है, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। हम यानी हम परमात्मा के अंश नहीं हैं, हम परमात्मा की कठपुतलियां हैं। अगर ये भी धारणा है तो छोड़ दो ना, करने तो जैसा होता है, जैसे भी होता है तो वही करता है, तो हट जाओ आप अंदर से। तो हम हट भी नहीं सकते हैं, उसे पूरा सौंप भी नहीं सकते हैं, और इस द्विधा में, अंधकार में रहते हैं। तो इस तरह से आपके अंधकारों को आपको थोड़ा समझना है। और एक चीज अंधकार के बारे में बता देता हूं कि मुझे अगर कोई गाइड करेगा, मुझे कोई गाइडेंस चाहिए, मुझे कोई मेंटर चाहिए, मुझे कोई मार्गदर्शन देने वाला चाहिए, वो कहाँ पे चाहिए? जहां आपको स्किल डेवलप करनी है, जहां स्किल डेवलप करनी है यहां आपको चाहिए ही चाहिए, आपका अनुभव नहीं हो तो। लेकिन ऐसा भी नहीं है, आपको अगर आप एकलव्य हो तो बिना गुरु के भी कोई भी विद्या सीख सकते हो। अगर कोई एनएलपी जानता है तो एनएलपी में ऐसी टेक्निक्स है, और हम लोग तो एनएलपी बहुत पहले से जानते थे, क्योंकि हम तो ये कहते हैं कि ये शिव का जगत है। ओम नमः शिवाय 5
का अर्थ ही है 5 तत्व से 3 गुणों से बना हुआ आज जगत जो हम और आप महसूस कर रहे हैं। ऐसा जगत जो हमें दिखता है लेकिन वो है नहीं, ये कैसे संभव हो सकता है? ये दोनों विरोधाभासी बात कैसे हो सकती है? इसी को थोड़ा समझने का हम प्रयास करेंगे। तो मान लो कि आपको किसी के भी गाइडेंस की जरूरत नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि आपको गाइडेंस चाहिए, आप गाइडेंस लो, लेकिन मेरी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण गाइडेंस आपको सिर्फ अपने अंदर से मिल सकता और कहीं से नहीं मिल सकता। मैंने और एक बात कही थी कि और कुछ जीवन के अंधकार के बारे में आपने सोचा होगा कि आपको महसूस होता होगा कि आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके रिलेशनशिप्स खराब हैं, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आगे नहीं बढ़ रही है, आपके करियर में प्रॉब्लम है। ये सब जो भी आपको अंधकार लगते हैं, जो भी जिस विषय में आपको अंधकार लगता है, उसे पकड़ के उसके ऊपर काम करते रहिए। कैसे करते रहिए? अपने अंदर से जो भी आवाज आती है उससे कैसे जुड़ना और कैसे अपने अंदर के गुरु को एक्टिवेट करना, वो बात हम करेंगे। तो मत ये समझिए कि ये आपके जो प्रश्न है, क्योंकि आपको जो दिखता है वो एक ही लेयर दिखता है, इस वास्तविकता के कई लेयर्स। आप शायद देख नहीं पाते हो, आपका शायद समझ नहीं पाते हो, आपकी जो समझने की क्षमता है, मान लो कि हम ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं तो हमें जो नजारा दिखेगा वही नजारा टॉप फ्लोर पे रहने वाले को नहीं दिखेगा। तो आपको अपनी लेवल स्टेप बाय स्टेप कैसे बढ़ाएं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अंधकार को पहचानना है कि ये अंधकार मेरे जीवन में, ये पेन मेरे जीवन में, ये तकलीफ मेरे जीवन में परमानेंटली रहने के लिए नहीं आएंगे, सिवाय आप कुछ ऐसा करके उसको परमानेंटली अपने पास रखते हो। आपने कभी देखा है कि आपको बॉडी पे छोटा सा कट आ गया, तो कुछ भी करके कुछ भी ना करो तो आप कैसे भी वो अपने आप हील होने की उसमें क्षमता है। तो इस सृष्टि में जो भी कुछ है, अगर आपका इंटरफियरेंस नहीं होगा तो ये सब कुछ अपने आप ठीक होने की व्यवस्था रखी गई है। ये आपने चुना हुआ, आपके आत्मा ने चुना हुआ अनुभव है जिससे आप गुजरने के लिए ये परिस्थिति, उन प्रकार की व्यक्तियां, वो स्थान, वो सिचुएशंस आपने अट्रैक्ट की। तो अंधकार को अंधकार न समझ के, जैसे हमने कहा कि रात और दिन की बात करते हैं, अगर रात और दिन की हमने बात की तो पृथ्वी से थोड़ा ऊपर उठ के जाइए जहां सूरज 24 घंटे दिखता है, जहां चांद पूर्ण पूर्णिमा की जैसा हमेशा चमकता है। तो इस इल्यूजन, ये इल्यूजन भी नहीं है, ये भ्रांति भी नहीं है, भ्रमणा भी हम जो समझते नहीं है, ये व्यवस्था है। तो किसी भी व्यवस्था को आपको स्वीकार करना या नकार करना, वो दोनों नहीं करना। ना आपको लाइट अच्छी है ये कहना है, ना आपको डार्क अच्छा है ये कहना है, ना एक दूसरे को बुरा कहना है, दोनों को स्वीकार करना। ऐसे जीवन में जो भी आता है उसे स्वीकार करना। अगर आप सिर्फ फ्लो होंगे तो भी आपके जीवन के बहुत सारे प्रश्न मिट जाएंगे।
प्रश्न में ही उत्तर होते हैं, प्रश्न में ही सारी सिचुएशंस का, जैसे बीज में वृक्ष होता है इसी तरह प्रश्न में ही जवाब होता है। मैंने ये भी लिखा है कि इस वक्त का समय बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ये बात को सबसे ज्यादा अहमियत देता हूं कि अगर ये समय आप चूके तो जो घटने वाला है उसकी आपको कल्पना नहीं। तो ये समय क्यों महत्वपूर्ण है वो थोड़ी सी बातें हम समझ लेते हैं। हम इंटरनली एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक है। जैसे हमारा शरीर, मान लो आप, ये जो शरीर है इसके हर एक सेल्स, हर एक चीज जो शरीर से जुड़ी हुई है, जो शरीर का हिस्सा है, उसे आप अलग नहीं देख सकते, अलग नहीं कह सकते, आप एक रूप मानते हो और हर एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसी तरह पूरे ब्रह्मांड में जो भी कुछ है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपका शरीर ही ब्रह्मांड मान लो। हमारे शास्त्र में ये कहा गया है पिंडे ते ब्रह्मांड, जो इस पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। आज साइंस ये कह रहा है कि दैट इज बिकॉज ऑफ दिस यूनिवर्स इज होलोग्राफिक इन नेचर, कि यहाँ एक जगह पे परिवर्तन करो तो सारे यूनिवर्स में रिफ्लेक्ट होता है। और दूसरा, ये यूनिवर्स रिफ्लेक्टिव यूनिवर्स है, ये प्रतिबिंब ही दिखाता है आपको। और ये यूनिवर्स जो अर्थ में हम जी रहे हैं वो भी परब्रह्म का प्रतिबिंब है। और प्रतिबिंब में क्या होता है, आपको थोड़ा सा मैं, कभी आईने में अभी आपने आपको देखा है क्या फर्क है आईने में और आप में, अपने आप में कभी सोचा? जब आईना आप देखते हो तब आपका राइट हैंड आपको राइट साइड नहीं दिखता है। अब मैं भी अभी बात कर रहा हूं, राइट हैंड उठा रहा हूं तो मुझे स्क्रीन पे राइट हैंड लेफ्ट की तरफ दिखता है। तो ये प्रतिबिंब जो है, वो जो शक्तियां, जहां कुछ नहीं था वहां से शक्तियां स्प्रेड होते 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 हुए हर कण कण तक पहुंची है। अब समय आया है कि वो अपनी ओरिजिनल स्थिति में जाने की प्रक्रिया कब से शुरू कर चुकी है। और अर्थ में इस वक्त पे, जैसे कहते हैं कि ये मैं साइंस के आधार पे बात करता हूं, कोई फेथ के आधार पे नहीं करता हूं, कोई समझ के आधार पे नहीं करता हूं। साइंस, आज का साइंस, नासा ये मानता है कि ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही है स्पेस में कि अब ये जो एक ब्लैक होल की थियरी से जब हम आगे एक्सपैंड करते गए तो अभी एक समय आया है वो एक्सपेंशन से कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जा रहा है। यानी शक्ति, जो मूलभूत शक्ति है, वो पहले 2 में डिवाइड होती है, फिर 5 में, फिर गुण बढ़ते हैं, इसकी पूरी सारी प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया का रिट्रीवल स्टार्ट हो चुका है। और अर्थ इस वक्त पे, आप सिर्फ एक देख लो कि इस वक्त पे 790 बिलियन पीपल वर्ल्ड में है। इनके सारे के जो कलेक्टिव रोग है, जो फिजिकल एलिमेंट है, इसका सम टोटल आप लगाएंगे तो वैसी हालत अपनी पृथ्वी की इस वक्त पे है। और पृथ्वी एक ग्रह नहीं मानते हुए इसे आप एक जीवंत तत्व मानिए। इस कदर पृथ्वी बीमार है, इसलिए इस पृथ्वी में परिवर्तन सहज है, आने वाला है। चाहे आप उसे ज्योतिष की दृष्टि से देखें, इसे अंक गणित की दृष्टि से देखें, साइंस की दृष्टि से देखें, श्रद्धा की दृष्टि से देखें,
तो इस परिवर्तन में जब हम अंदर से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये जगत अभी जो डेवलपमेंट चल रहा है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, वो हमारी अंदर की कॉन्शियसनेस ही बाहर आ रही है ना। हम टेलीपैथिक बात कर सकते थे, तो उस विचार को हमने मोबाइल फोन में कन्वर्ट कर दिया। हम सारी अपनी अंदर की मनुष्य की खूबियों को टेक्नोलॉजी में बाहर लेके आए, तो हमारा जो इनर नेट था वो आज इंटरनेट बन गया। और आज हम कहीं भी किसी से भी ऐसे पल में कनेक्ट कर सकते हैं। एक बटन है ऐसा, सिर्फ एक बटन। ये बटन दबाने से आप पूरी जगत में एक भूचाल ला सकते। ये पावर आज आप में है, और वो बटन का नाम है सेंड बटन। आपने सही चीज सही समय पे सेंड कर दी। अगर आपको याद नहीं आता है तो कुछ घटनाएं मैं ऐसे बताऊं जो एक बटन से कैसे परिवर्तन होते हैं। फिलहाल अमेरिका में एक व्यक्ति को एक पुलिस ने मार दिया था। सिर्फ एक वीडियो वहां पे क्लिप हो गया, वो वीडियो सेंड हो गया और पूरे जगत में परिवर्तन आया। और ऐसा कहते हैं, ऐसा मानते हैं कि उस घटना की वजह से डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार गए। आज सेंड बटन बहुत पावरफुल है आपके हाथ में। आप इससे क्या करोगे वो हमें देखना है, वो समझना है। आज हम उसकी भी बात करें। आज ये भी देख रहे हो कि कितनी तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। आप सोच भी नहीं पाते हो, उसके पहले परिवर्तन हो जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां उठती है, इतनी बड़ी हो जाती है, फिर अचानक ही कुछ परिवर्तन आ जाता है। नए नए विचार को लेके भी, नई बातों को लेके भी ऐसे क्विकली कॉन्शियसनेस इतनी, क्योंकि कॉन्शियसनेस की बढ़ने की गति ही स्पीड है, इसीलिए ये परिवर्तन आपको बहुत तेजी से लगते हैं। आज आपका टाइम का अनुभव जो है वो आपको लगता है कि एक दिन बहुत छोटा पड़ता है, बहुत समय बहुत स्पीड से जा रहा है। अगर आज आप तैयार नहीं हुए तो आप छूट जाएंगे। कहाँ छूट जाएंगे और कहाँ जाएंगे उसकी हम बात करें। 95 में जब मेरे एक एनलाइटन मास्टर गुरु मिले, उन्होंने एक बात कही कि वो क्यों हमें मिले। उन्होंने एक संकल्प लिया था। वो 20 साल एनलाइटन होने के बाद अपने बारे में किसी को नहीं बताया कि मैं एनलाइटन हुआ हूं, या ऐसी किसी को पता भी नहीं चलने। अब ये बात अलग है कि आप पूछेंगे कि क्यों नहीं बताया, और कुछ लोग डंके की चोट पे बताते हैं। वो बात हम कभी कहीं और समय करें। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने इससे पहले जन्म लिया था, जो मेरा 1500 साल पुराना जन्म था, तब जिन लोगों ने मेरी मदद की थी, मैंने ऐसा संकल्प उठा मेरे मन में। हालांकि एनलाइटन मास्टर के अंदर जो संकल्प उठते हैं वो करुणा से कम नहीं होते हैं। तो उनकी करुणा थी, उनकी कृपा थी कि उन्होंने हमें ढूंढा। मैंने अपने सामने, उसने कुछ लोगों को एनलाइटन होते, कुछ एनलाइटन हुए, और मैं अनेक एनलाइटन मास्टर्स के संपर्क में आया, फिजिकली, एनर्जेटिकली। कईयों ने मुझे गाइड किया, हेल्प किया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने आप को सरेंडर किया। और सरेंडर भी मैं क्या करता, मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी, मेरी इतनी जरूरत नहीं थी कि मैं अपने आप को सरेंडर भी किया ऐसा बोल सकूं।
उसने उठा लिया। इसलिए मैं ये कहता हूं कि आज का समय, जब ये घटनाएं घटी तब स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट इतने आसान नहीं थे। आज की तारीख में मैं जानता हूं कितने लोगों को जो आज स्पिरिचुअली इवॉल्व है, एनलाइटन्ड है। और अगर ये पूरे जो मानव जात है वो सब अगर एनलाइटन हुई तो एनलाइटन बाद में रहने का मतलब ही नहीं बनता। यानी सभी के पास आंखें हैं, सभी के पास सारी इंद्रियां काम कर रही है, तो कैसा जीवन होगा जो हम जी रहे। अगर सभी अंधे हो और एक जन को आंख हो तो हम कह सकते हैं। तो ये परिवर्तन आने वाला है और इसमें जो छूट जाएंगे, बहुत लोग अपनी अंदर अपनी शक्तियों को पहचान पाएंगे, अपनी शक्तियों के माध्यम से इस जीवन को, क्योंकि ये जो प्लैनेट है, ये जो स्थान है, ये शिफ्ट होने वाला। तो जो भी एनलाइटेंड है, लाइट बीइंग्स, एनलाइटेंड का मतलब क्या होता है कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, हम अपने आप को विचार, इमोशंस या जो भी मानते हैं, लेकिन हम वो है नहीं। हम सिर्फ पूर्ण शुद्ध प्रकाश है। तो अब इस स्थिति में ये कोई डराने वाली बात नहीं है कि चलो अभी ये ले लो नहीं तो अब रह जाओ। क्योंकि आगे का जो भविष्य है वो प्री डिसाइडेड नहीं है, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करने वाला है। और आज तक आप जैसे चॉइस करते आए हो वैसा ही नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा। यही बात आपको भविष्यवेता बताते हैं। लेकिन वो परिवर्तन करने की संभावना आपके अंदर है, ये मुझे आपको बताना। आपको सिर्फ इस परिवर्तन के लिए मैं तैयार हूं, यही मनस्थिति में रहे तो भी कहीं से भी आपको कोई भी मार्गदर्शन आ जाएगा, कहीं से भी रास्ते खुल जाएंगे। गुरु की क्या आवश्यकता है? मेरे गुरु मुझे नहीं मिलते तो मैं आपके सामने इस तरह बात नहीं करता हूं। जिस प्रकार का जीवन मैंने जिया है, आज कहीं मेरे मित्र है, कहीं मेरे रिश्तेदार है, कहीं जगह पे जब मैंने, हाँ, कुछ अच्छाइयों के बारे में बात करते हैं मेरी, लेकिन उससे बहुत आश्चर्य होता है कि आप ये सब कैसे कर लेते। आपका व्यक्तित्व ये था ही नहीं, आप ऐसे थे ही नहीं। तो अगर जो मेरा व्यक्तित्व जानते हैं, समझते हैं, उससे बहुत ही अलग लगता है। ये सिर्फ और सिर्फ गुरु की उपस्थिति के कारण ये परिवर्तन मेरे जीवन में आ सका। गुरु क्या करता, गुरु आपको क्या करवाता है या क्या करता है, आपसे क्या चाहता है? गुरु सिर्फ आपसे तैयारी चाहता है। गुरु आपको आपसे कनेक्ट करवाना चाहता है। मैंने जो मेरे गुरु से सीखा वही मैं आपको दे रहा हूं। इसमें ये जो मेरा नहीं है कुछ, यही होना चाहिए और यही होता है। जहां मुझे, मेरे पे बार बार आप मेरे से डिपेंडेंट रहो, ऐसा मुझे नहीं चाहिए। आपको वही क्षमता, वही परब्रह्म का प्रकाश आपके अंदर प्रकट हो
उसके लिए जो करना है, तो जैसे ज्योत से ही ज्योत जलती है, तो आपके जो 3 प्रकार के ताप है, मानसिक, शारीरिक और फाइनेंशियल, या आप जो 7 विशुद्धियां लेके बैठे हो भावनात्मक, तो वो गलत नहीं है। मैं किसी भी चीज को, रात्रि का महत्व उतना ही है। इस जगत में ऐसा कुछ भी नहीं घटता है जो उसको मंजूर ना हो। अगर वो जो भी घटता है वो उसको मंजूर है, तो आप कौन होते हो उसके निर्णय के ऊपर अपना निर्णय थोपने के लिए और ये सोचने के लिए कि उसने गलत किया या उसने सही किया, या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जैसा वो करता है ना, ये सिंपल बात, डू व्हाट गॉड डज। आपको वही पावर देके भेजा है, वही क्षमता देके भेजा है। आपको याद कराता है कि आप शरीर नहीं हो, आप ब्रह्म में जी रहे हो। वो याद कराने का काम ही सिर्फ गुरु का है। सत्संग की जब बात करते हैं तो सत्संग वो साथ में बैठ के मिलके बातें करना या भजन करना या सिमरन करना उतना ही नहीं। सत जो आपके अंदर है उसका संग कर, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है किसी में भी जो आपके अंदर प्रकट नहीं हो सकता। आपके अंदर उसकी संभावना ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है इस जगत में। ऐसा कोई अनुभव नहीं है जो आप खुद नहीं कर सकते हो अपने आप, जिसके लिए आपको किसी की आवश्यकता पड़े। मुझे पता है आपकी सोच कहां तक जाती है, आपका मन क्या क्या प्रश्न उठाता है, लेकिन उसके उत्तर में यहां देना, मैं गुरु का काम इतना ही है, आपसे आपको मिलाए, उसके लिए जो चिंगारी लगानी है लगाए, और वो बाजू में बैठ के खड़ा ये देखता। गलती से भी आप अगर डिपेंडेंट हुए, आपके क्लचेस को काट देना, ये मेरा पहला धर्म है। अब जिस भी क्लचेस के ऊपर चल रहे हो उसको मुझे हटाना है और आपको अपने पैरों पर चलाना है। अगर ये काम कोई भी करता हो, आप किसी से भी करवा लीजिए, और लेकिन यही काम करो। अब हम कुछ ऐसी प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। जब हमने कहा कि अंधकार में ही जीना किसलिए, तो अभी तैयारी के लिए कुछ चीजें आपको करनी पड़ेगी, जो मैं आपके तैयारी के रूप में, सिंपल सी चीजें हैं, लेकिन आपको इससे जो परिवर्तन मिलेगा या आपका प्रिपेयर्डनेस होगा वो बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। मेरा आज का ये जो टॉक है उसका उद्देश्य ये नहीं है कि दिव्य शक्ति क्या है और दिव्य शक्ति में क्या करना है, आपको करना है कि नहीं करना है, वो सब मैं कहने के लिए नहीं आया। मैं आपको एक सीधी सी बात कहता हूं, आपको दगा नहीं देना है किसी, ना अपने आप को, क्योंकि सबसे ज्यादा दगा आप अपने आप को देते हो, इसीलिए आपको लोग दगा देते हो। तो पहला काम करना है, दगा नहीं देना है अपने आप को या और किसी को। व्यवहारिक जीवन में आप झूठ नहीं बोल सकते हो, सच नहीं बोल सकते हो, लेकिन आपको अपने आप कभी भी झूठ नहीं बोलना। अपने अंदर सत्य क्या है उसे समझना है, उसे छुपाने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि ये आदत की वजह से हम खुद ही भूल जाते हैं कि सच्चाई हमारी क्या थी और हमने क्या किया था। आप अपने जीवन की कोई भी घटना को ले लीजिए। Okay. There was another mentor on our group on HNH, and आप कोई भी घटना one लीजिए, of her very close family member made the logo, and the logo was having that particular color, purple. बीच में Along कोई with आवाज that. आ रही है, अंजना जी And जरा, he just और made जी it आप उससे before बंद करेंगे his death. 2-3 और
आपके वैल्यूज के, वैल्यू यानी आप प्राधान्य किसी को देते हैं, किसको देते हैं, उसे आप चेक करते रहिए, बदलते रहिए। क्या सिर्फ पैसा कमाना आपका प्राधान्य है जीवन का? आपका वैल्यू, आपकी सिद्धांत किस विषय के हैं और कैसे कैसे सिद्धांत हैं, और उसको सिद्धांत को में क्या परिवर्तन की आवश्यकता है, आपका गोल क्या है, उसके हिसाब से आपके सिद्धांत होंगे और आपको उसके ऊपर चलना होगा। तो सिद्धांत से अलाइन होइए, आपकी हर बिलीफ को, आपकी हर मान्यता को आप चैलेंज कीजिए। आप ये मानते हो, मैंने देखा है, मैं ये मानता हूं, लेकिन आपकी मान्यता क्या सचमुच सही है? क्योंकि जब आप किसी भी मान्यता आपका कमांड है। कंप्यूटर में जैसे ही आप एंटर दबाते हो, वो आपका फाइनल कमांड है। आपने जो भी टाइप किया है, आपने जो भी लिखा है, वो कमांड जाता है। तो बिलीव्स है आपकी मान्यता, आपके कमांड्स, इस यूनिवर्स को। आपको जो भी मिलता है यूनिवर्स देता है ना, वो आपके कमांड के हिसाब से देता है। जैसे ही आपने कमांड चेंज किया, वो सामने की चीजें परिवर्तित कर देता है। तो ऐसे ही आपको अपनी मान्यता के ऊपर सोचना है। आपको ये सोचना है कि आप एक्ट ऑफ काइंडनेस कितना करते हो दिन में। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो किसी के लिए भी, तो आप एक सिंपल सा काम तो कर सकते हो। एक एक्सीडेंट हो रहा है, आप एक्सीडेंट के स्थल से गुजर रहे हो, आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हो। हमें लगता है काइंडनेस करना सिर्फ और सिर्फ फिजिकल काम करना है। नहीं, ऐसा नहीं है। विचार से भी, मन से भी, क्योंकि जितना आप दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, वो ही रिफ्लेक्ट हो गया आपके। कर्म की बात नहीं करता हूं मैं, रिफ्लेक्टिव थियरीज की बात कर, रिफ्लेक्टोलॉजी बोल सकते हैं इसे, कि पूरा जगत रिफ्लेक्ट ही कर रहा है। कभी सोचा है कि इस ब्रह्मांड ने आपको क्या दिया है? और ब्रह्मांड हर हमेशा कहता है कि वी आर फॉर यू। सांस ले लो, सूरज ले लो, चांद ले लो, सब कुछ, ये पूरा ब्रह्मांड अगर एक क्षण के लिए भी आगे पीछे हो जाएगा, आपकी सांस अटक जाएगी। सभी की 790 बिलियन। अगर वो ये सब कुछ कर रहा है बिना आपसे कुछ मांगने के लिए, तो उनका माध्यम बनो। उनके माध्यम के हिसाब से आपको कुछ जो करना है, तो गिव सर्विस टू दी सोसाइटी। आपकी जो एक्सपर्टाइज है, आपको जो समझ आता है, जिस तरह से आप कर सकते हो, इसके अंदर आपके दिमाग में मन के विचारों को मत लाइए। आपको सर्विस करना है, करना, इतनी सी बात, रुकना नहीं। और जीवन में किसी को भी एम्पावर कीजिए, किसी के पावर को दबाइए मत, किसी का भी हो चाहे। ये आपकी प्रिपरेशन है, ये करते रहिए, आपको गुरु आके पकड़ लेगा। आपको गुरु ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये आपकी परिपक्वता निश्चित करेगा। अब गुरु को एक्टिवेट कैसे किया जाता है अंदर, ये बहुत 2-3 महत्व की बातें हैं। मैं विनती करता हूं कि इसको, बैटरी कम हो गई तो चार्ज के लिए। दो सिंपल बातें बताता हूं, अंतकरण शुद्ध करने के रास्ते मैंने बताइए। अब ऐसा कोई समय नहीं है कि अंदर से आपको गाइडेंस ना मिले। जस्ट जो अंदर से गाइडेंस मिलता है पहला, उससे आप
फॉलो करें, सिर्फ उसको फॉलो करें। और आपको पता है वो गाइडेंस कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, कैसे आवाज आती है, कैसे आपको डायरेक्शन मिलता है, कैसे आपके एक्शंस पे कंट्रोल आ जाता है, और वो कहता है बार बार कि ये चीज करो, ये चीज करो, ये चीज करो। वो विचार, वो है आवाज, वही परब्रह्म की, वो है आवाज, वही शक्ति की, वो है आवाज आपकी खुद की, वही आवाज आपको राह दिखाती। यहाँ जाओ, यहाँ ना जाओ। तो इसको, आपको ये मुश्किल लगता होगा कि कैसे करें, तो मैं 2 सिंपल प्रोसेस आपको देता हूं, जिससे आप अपने अंदर ये चीजें करके जीवन के कोई भी प्रश्नों को, जीवन की कोई भी परिस्थिति को उसमें से मार्ग निकाल सकते हैं। अब बात रही कि वो 2 प्रक्रिया क्या है, तो सिर्फ यस और नो में आपके अपने आप को जवाब देना है, जानना है। आपको कुछ करना है, जैसे अगर आपको कुछ करना है कि मुझे राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है, इस प्रश्न का उत्तर ये शुरुआत है। जैसे जैसे आप इसको मास्टर करते जाएंगे, अपने आप चीजें आपके जीवन में बदलती जाएंगी और नए नए रास्ते आपको मिलते जाएंगे। तो आपको पूछना है कि मैं राइट जाऊं, और एक सांस लेनी है और देखना है कि सांस कितनी डीप में जा रही है। अगर वो यहां तक रुकी तो मत जाइए, अगर वो अंदर तक गई तो जाइए। ये आपका इनर गाइडेंस का पहला सूत्र, इसे थोड़ा सा मास्टर कीजिए। आपकी सांसें हमेशा आपको सही आंसर करेगी। और दूसरा है, आप वही चीज करिए जो करने में आपको एक्सपैंडेड फील होता है। जहां भी आपको अंदर से सिकुड़ना ऐसा लगेगा कि मैं सिकुड़ गया हूं, वो चीज से बाहर निकल जाए। ये आपके सबसे, जो 24 घंटे आपके साथ रहेंगे, ना जिसको कुछ पूछना पड़ेगा, ना वो डायरेक्शन देंगे, कुछ करेंगे, लेकिन आपको इंडिकेटर देंगे। इसी इंडिकेटर को पकड़ के चलते रहिए। तो इस जगत में वो जो लाइट है, जो परमात्मा है, इसके बारे में जो भी कुछ कहा गया है, जो भी कुछ बताया गया है, हजारों लाखों बुक्स लिखी गई है, हजारों लोगों ने बहुत सारे वर्णन किए हैं, सभी के वर्णन कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं। हमने एक भजन भी सुना, उसमें भी कुछ बातें कही गई। मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा इस स्थिति को समझने, आपका अंधेरा कहाँ है और आपको कहाँ पहुंचना है, उसकी एक छोटी सी समझ देता हूँ। बाद में एक एनर्जी चैनलाइज करके आपको एक एनर्जी का अनुभव कराता हूँ। आप मूवी थिएटर में हो, अब पुरानी मूवी थिएटर्स की बात कर रहा हूं मैं, जहां पे रील्स चलती थी, जहां प्रोजेक्टर था, वहां से पीछे से लाइट आती है और मूवी के अंदर जो भी कुछ चीजें हैं वो आपको प्रोजेक्टेड दिखती हैं और मूवमेंट चलता है। अब जो ये प्रोजेक्शन, जो स्क्रीन के ऊपर जो मूवी चल रही है वो दिख रहा है, वो पहले से सुनिश्चित है, लेकिन हमारे जीवन में ऐसा नहीं है। हर एक कैरेक्टर कैसे इंटरप्ले करता है, वैसे मूवी बदलती है।
ऐसे स्टोरी बदलती है। तो अगर वहां क्या है जो आपको प्रोजेक्ट जो स्क्रीन के ऊपर दिखता है वो रील के अंदर होना चाहिए। तो यानी कि आपके अंदर होना चाहिए, आपके अंतरात्मा में होना चाहिए, जो आपको बाहर महसूस हो। जो आपकी रियलिटी, आपके जीवन का जो मूवी है, इसमें जो भी अनुभव आपको आते हैं, जो भी स्क्रीन में दिखता है, वो आपके आत्मा का प्रतिबिंब दिखता है। तो यहाँ जितना जो भी आएगा ना, वो आपको सामने आपके जीवन में अनुभव होगा, व्यक्ति के रूप में, अनुभव के रूप में, स्थान के रूप में, परिस्थिति के रूप में। और आप और परमात्मा अलग नहीं हो, आपके अंदर परमात्मा। इसका अर्थ ये हुआ कि आपके अंदर वो लाइट है, जिस लाइट के माध्यम से आपको प्रोजेक्शन दिख रहा है, आपके थ्रू वो लाइट पसार होती है, हर कण कण में है वो। तो आपकी जो वास्तविकता आपको दिखती है, जो मूवी आपको दिखता है, उसके अंदर वो है। और जो लाइट जहां से प्रोजेक्टर रूम में से निकलती है, वो परमात्मा की लाइट है। तो ऐसी कोई भी घटना नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमात्मा आपके साथ नहीं है और जो परमात्मा की वजह से नहीं है। और अपने आप को न परमात्मा से अलग मानिए, न जानिए, न समझिए। आपके अंदर ही परमात्मा है और आप ही परमात्मा हो। आपको सिर्फ याद करना, आप भूल गए। जैसे कैरेक्टर आता है, एक कैरेक्टर प्ले करते करते वो कैरेक्टर में घुस जाता है, लेकिन जब शूटिंग पूरी होती है, श्री बहुत शूटिंग करती थी, तो जैसे ही वो अभिनेता बाहर निकल जाता है कैरेक्टर से, वो अभिनेता बन जाता है। आप ये कैरेक्टर प्ले करते करते भूल गए हो कि आप ओरिजिनली कौन हो, और आप शुद्ध प्रकाश हो, आप ही परमात्मा हो। और गुरु को पहचानने की, जानने की एक ही सूत्र, जो हर प्रक्रिया में आपके साथ है, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो एम्बॉडीमेंट ऑफ परमेश्वर। इसके संदर्भ में आपको कई प्रश्न उठते होंगे, लेकिन मैं आपको एक एनर्जी 5 मिनट तक ये चैनलाइज करेंगे हम। 5 से 7 मिनट लगेगा आपको सिर्फ आंखें बंद करके मेरी आवाज को सुनना है। मुझे देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज को सुनना है। ठीक है, आंख बंद कर लीजिए और मेरी आवाज को सुनते रहिए। ओ ओ ओ ओ
ओ Amtroxesilo, Dripakasilo, Apluslipas, Tutrap, Mastracasore, Opaticosto, Tiramasazuru, Optliresicótico, Indromasla Catapachico, Itro Lapluci, Aptosondro, Potricila Bastro, Adcliglu, Intropala Pacho, Intropala, Sapato, Iptropastro, Abstru, Indroso, Itro Basaclicoce, Intropacho, Introcacho, Intronacho, Intropotro, Intropaslu, Tipotro. Saplas, Intropachala, Intropachiti, Intropachutra. Ablust, Ablust, Ablust. आपके अंदर आप स्थिर हो जाइए। जागृत सुसुप्त और स्वप्न में अगर आपको ये पता चलता है कि आप कौन हो और समाधि की 4 अवस्था जो पतंजलि ने बताई, अगर आप उसका अनुभव करना चाहते हैं तो 10 ऑडियो का पूरा एक सेट है जो आप आपके सपोर्ट के लिए यूज कर सकते हैं। जो शक्ति मेरे अंदर से आपके तरफ ये बातों को पहुंचाया, एक ही कहूंगा, आप पूर्ण सक्षम हो और आप अपने जीवन में सुख, शांति, आनंद, संपत्ति और जो भी आपको मिलता है उसमें तृप्ति अनुभव करें और आप इस मायावी जगत से मुक्त हो जाए। और आप अपने दिव्य प्रकाश को पहचान सके, आप दिव्य ऊर्जा को जान सके और इसमें दिव्य शक्ति आपकी मदद। मैं आपको उपस्थित रहने के लिए और मेरी बात सुनने के लिए अभिनंदन देता हूं और धन्यवाद करता हूं। हम यहाँ पे कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। और अंजना जी और जो भी लोगों ने मेरे बारे में जो भी कुछ बोला उसके लिए बहुत 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 आभार। श्री विद्या का बहुत आभार। मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ, विदाई लेता हूँ। धन्यवाद।
Thank you everyone for being a part of this journey today. We end the meeting here only. Thank you so much. Pranam. Thank you, thank you, thank you, everybody. Thank you, thank you, Anjana thank ji. you, everybody. Thank you, everybody. Thank you, everybody. Thank you, everybody. Thank you, thank you, thank you, everybody. Thank you, everybody. I have shared the group. I have shared the link of Surrender to Life within in the group that you have joined. Then check the link. Thank you.